वक्त हुआ चला जाता है कि हम खुदावंद के कलाम में चलेंगे, और अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मैं आपको दावत दूंगा कि मेरे साथ निकालें अमालों की किताब, उसका 9वां बाब, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 9, and we will read from verse 1 onwards till verse 9. The book of Acts chapter number 9 verse 1 से लेके उसकी 9वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम के तकद्दुस में मैं आपको दावत दूंगा। आइए हम अपने कदमों पे खड़े हों, and I will be reading it in English and then Pastor Khurram will help us understand the translation in Urdu. The word of the Lord says like this: Then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters from him to the synagogue of Damascus, so that if he found any who were of the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. So he, trembling with astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, Arise and go into the city, and you will be told what you must do. And the man who journeyed with him stood speechless, hearing a voice after seeing no one. Then Saul arose from the ground, and when his eyes were opened, he saw no one. But they led him by the hand and brought him into Damascus. And he was there 3 days without sight, and neither ate nor drank. खुदावंद के पाक कलाम में ऐसे लिखा है, और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों को धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, खा मर्द खा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, ऐ खुदावन, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मगर उठ, शहर में जा, और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और साउल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ दिखाई न दिया। और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए, और वो 3 दिन तक न देख सका और ना उसने खाया न पिया। कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। आइए दुआ करें। जीसस, इट्स ऑल अबाउट यू। और आए खुदा, जबकि अब हम तेरे हजूर आए हैं, मिन्नत है खुदावंद, तो अपने कलाम के मुकाशवे हम पर जलवागर कर। और खुदावंद खुदा, आई द सर्वेंट ऑफ क्ले प्लेस माई life before you, and I ask you, you speak through my mind, you speak through my mouth, and you think through my mind, and do what you want to do in this place. लोगों की जिंदगियों को बदल आए खुदा, and make yourself, Jesus, real to everyone like never before. In your mighty name we pray. And people of God said, Amen. You may be seated in the presence of the living God. For next few moments, I will be speaking to you from the subject of encounter with God. Encounter with God. This is a very famous story, the story of the road to Damascus. And people of God, if you are ready with me to have a fresh encounter with God, तो क्या आप मेरे साथ कह सकते हैं, I am ready?
हालेलुया। खुदा आपसे मोहब्बत करता है। When Pastor Khurram asked me to speak this afternoon, I said I'm not even prepared and I didn't even bought my Bible. So I have to borrow this Bible from Pastor Zen. And then he asked me, do you have any idea of what you will be speaking? I said, मेरे ज़हन में कुछ भी नहीं है. And this morning, 9 o'clock, when I was praying, the Lord gave me this word. And he said that there are people who are going through the road to Damascus. खुदा आपसे प्यार करता है. और जब मैंने रूह कुदूस की आवाज़ सुनी तो मुझे यकीनन इस बात का एहसास हुआ कि जब खुदा प्यार करता है, खादिम एक बर्तन है, सिर्फ वो एक मिट्टी का बर्तन है जो एक वेसल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. मैं एक डाकिया हूं जो यहाँ पर ना सिर्फ एक सरमन, क्योंकि सरमन प्लान किया जाता है पर पैगाम प्लान नहीं किया जाता. पैगाम जो भेजने वाला है उसका पैगाम सिर्फ पहुंचाया जाता है. और मैं समझता हूं कि ये सरमन से ज़्यादा है क्योंकि इसमें आज पैगाम है. जब रूह कुदूस ने कहा there are people who are going through the road of Damascus, I knew one thing, that their encounters are on the way. Because Damascus means that it is a place of abundance overflow. In the natural, ये जो जगह थी, इस जगह पर abundance overflow है चश्मों का. और जब यहाँ से पौलुस रसूल गुजर रहा है, ये अपोस्टल पॉल जिसे आप और मैं रसूल की तरह जानते हैं, जो एक खुदा का बहुत अजीम खादिम है, जिसने 70% ऑफ द न्यू टेस्टामेंट लिखा है, जिससे आप और मैं इंस्पायर हैं, जो गैर ज़ुबानों में दुआ करता था, जिसके पास 9 रूह कुदूस की नेमतें थी, जो यीशु मसीह के पहचान के गहरे मुकाशफों को जानता था, जिसने हेवनली विजन्स को देखा है और जिसने यीशु को रूबरू देखा है. ये वो अपोस्टल पॉल यहाँ पर साउल है. और यहाँ पर ये उस दिशा की तरफ बढ़ा है जिस दिशा पर उसकी जिंदगी बदलने वाली है. द एनकाउंटर विद गॉड, पीपल ऑफ गॉड इन अ क्रिश्चियन लाइफ, ऑल ऑफ अस सम टाइम और समवेयर वी ऑल गो थ्रू द रोड ऑफ डेमास्कस, जहां पर हमारी मुलाकात खुदावन से होती है. और यहां पर ये सॉल जो अब कुछ लम्हों के बाद पॉल बनेगा, उसका दीदार हुआ है खुदावंद के साथ. ये दमास्कस की जो जगह है, ये रिप्रेजेंट करती है एक चेंज को. ये जगह रिप्रेजेंट करती है एक टर्निंग अवे को, एक यू टर्न को. ये जगह रिप्रेजेंट करती है दिल के बदल जाने को. ये जगह फिजिकल है, पर इस जगह पर हर कोई शख्स अपने खुदा से सोली वन बाय वन दीदार पाता है. मेरा दीदार खुदावंद से जब हुआ, वो भी रोड ऑफ डेमास्कस की तरह ही था. और खुदावंद को जिंदगी देने के बाद मेरे कई बार खुदावंद के साथ दीदार हुआ, क्योंकि मुझे दीदार की जरूरत थी. And later the message I will share what I meant when I say an encounter with God. People of God, God is more interested that we demonstrate the theology rather than knowing the theology. मैं दोबारा कहता हूं, मेरे साथ रहिएगा. मैं इस कलाम को रटे मार सकता हूं, मैं इस बाइबल को पेज टू पेज रटे मार कर आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूं. आप इस बाइबल को रटे मार कर प्रेजेंट कर सकते हैं, पर अगर आप डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं अपने बुलाए जाने वाले की जिंदगी को, मसीह यीशु जो आपका बचाने वाला और छुड़ाने वाला है, यही मसीह यीशु जो यहाँ साउल को कह रहा है कि तू मुझे क्यों सताता है. इन अदर वर्ड्स, वो तो यीशु के लोगों को सता रहा था, पर यीशु ने कहा क्योंकि ये लोग मेरे खून खरीदे हैं, ये लोग मुझे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इन लोगों में से मेरा किरदार दिखता है, ये लोग मेरी रोशनी है, अगर तू इन्हें सता रहा है तो तू मुझे सता रहा है. गॉड इज मोर इंटरेस्टेड that he makes us in such a way that we demonstrate the fruits of the Holy Spirit. We demonstrate that Jesus lives in us. खुदा का जो मंसूबा और इरादा उसकी मसीही कौम के लिए और उसके लोगों के लिए है, वो ये है अजीज़ों, कि मैं आप तक ये बात पहुंचा सकूं कि खुदा मुझ में रहता है, और मैं आपकी ज़िंदगी में ये देख सकूं कि खुदा आप में रहता है. तब मसीह यीशु का बदन तरक्की पाएगा. The road to Damascus is very important, and we all must experience this encounter.
मैं समझता हूं कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सब की मसीही जीवन में कभी ना कभी ये इनकाउंटर हो. But this encounter will never happen until we choose to go through the road of Damascus. This is a place where we will realize that we are wrong and he is right. This apostle Paul have a zeal for God. उसका जज्बा अपने खुदा के लिए था, पर वो जज्बा एक गलत दिशा में है. वो जज्बा अब खुदावन दोबारा से रीडायरेक्ट करने को है. और वही जज्बा आप गौर करिएगा, खुदावन ने पौलुस रसूल का इस्तेमाल किया और पौलुस ने कई शागिर्दों से ज्यादा इस्टेब्लिश किया है न्यू टेस्टामेंट चर्च को. जज्बा था, मोहब्बत थी खुदा के लिए, और जोश था और बड़ा वलवला था. पर ये पौलुस जिसको लगता है कि ये लोग गलत तालीम के ऊपर ईमान रखते हैं और ये लोग जिस यसु नासरी को मानते हैं ये तो सिर्फ एक नबी है, ये तो सिर्फ एक वन ऑफ द प्रॉफिट्स है, ये रॉन्ग टीचिंग है, आई वुड लाइक टू डिस्ट्रॉय देम. उसकी जील इतनी थी कि आप सोच कर देखें कि उसको है कि मैं इन लोगों को ख़त्म करना चाहता हूँ, इस कौम को ख़त्म करना चाहता हूँ, इस पैगाम को ख़त्म करना चाहता हूँ. बट ही डिडंट न्यू that what is about to happen on the road of Damascus, that he will be changed from a persecutor to the preacher of the same message. Hallelujah. पहले persecutor है वो इसी पैगाम का, और अब वो preacher है इसी पैगाम का, which tells me that the road of Damascus brings us from point which is wrong to the point which is right. The road of Damascus gives us a difference between dark and between light. The road of Damascus gives us the difference between life and death. The road of Damascus gives us this journey itself teaches us so many things. और मैं समझता हूँ कि ये रोड, ये सफ़र जो पौलुस रसूल का था, यहाँ से उसकी सेमिनरी शुरू हुई है, क्योंकि उसकी मुलाकात उसके बुलाने वाले के साथ हो चुकी है. उसकी मुलाकात उससे हुई है जिसकी अब वो खिदमत करने को है. इससे पहले उसने खुदा का नाम सुना है, इससे पहले उसने सुना है कि हाँ, गॉड ऑफ एब्राहम, आइजक एंड जेकब, यहोवा पा खुदा ही सच्चा खुदा है. उसका जुनून है और उसका जज्बा है कि वही खुदा जिसने लाल समुंदर अलग किया है, वही खुदा जो शैद्रक, मीशक, अबेदनगो के साथ था, वही खुदा जिसने मोसेस को फायरी बुश के अंदर अपना इनकाउंटर दिया, वही खुदा जेकब को जिसने रूबरू अपना दीदार दिया, ये वही खुदा है. ये वही खुदा है जिसके साथ इनोक चला करता था. ये वही खुदा है जिसने इब्राहिम के साथ बात की है. ये वही खुदा है जिसने आइज़ाया को यसु मसीह के लिए नबूवतें दी हैं. बट ही न्यू डिडंट वन थिंग, which is that the same prophecies which was prophesied by the prophet Isaiah was fulfilled in this message, the message of the gospel. ये मुकाशवे अब वो लेकर आगे प्रीच करने को है. उसका जज्बा है खुदा के लिए, उसकी गैरत है अपने खुदा के लिए, पर अब खुदा उसे तौबा की तौफीक देकर अपने लिए इस्तेमाल करने को है. And an encounter with God. People of God, what convinced me to use this title is because there are a lot of people I have seen that they knew the word religion, but they have never met the Savior. वो मजहब से वाकिफ हैं, पर वो उस खुदा से वाकिफ नहीं है जो मजहब से भी बहुत बड़ा है. What causes me to say like this is because an encounter with God changes life. And there are people who goes to the seminary. There are people who can go to the college where they can learn the Bible from front and back, but they have never met the author. Their life will never be changed. जब यसु मसीह सलीब पर थे अजीजो, तो उस डाकू ने कहा, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो तू मुझे याद करना. अब 2 डाकू हैं और उसमें से एक कहता है यसु को कि जब तू अपनी बादशाही में जाए सिर्फ याद करना. He knew what he deserves. वो जानता था कि उसने पूरी जिंदगी लोगों का माल लूटा है. वो जानता था कि वो इस लायक ही नहीं है कि वो खुदावंत की बादशाही में खड़ा भी हो. तो उसने फिर एक दरखास्त की है, तू सिर्फ मुझे याद रखना.
and an encounter. उसकी जिंदगी जो कि सिर्फ कुछ लम्हा मौत से दूर है, वो शायद ना बदली, पर उसके आने वाली जिंदगी बदल गई। जब यीशु मसीह ने अपने जुबान मुबारक से कहा, तू बात करता है मैं तुझे याद रखूंगा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। Jesus Christ demonstrating his mercy, Jesus Christ demonstrating his authority even on the cross of Calvary. One encounter with God changes everything. It changes our destiny. आपका एनकाउंटर आपके खुदा के साथ आपकी नस्लों को बदल सकता है। आपका एनकाउंटर आपके खुदा के साथ ईमान का नया जन्म ले आता है। आपका एनकाउंटर आपके खुदा के साथ आपके ख़ानदान के अंदर उन मुकाशफों को ले आता है जिसमें आपके औलाद, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई उस रोशनी के अंदर बदलना शुरू हो जाते हैं। And an encounter with God. We see that this apostle Paul, ये पौलुस रसूल, यहाँ पर जो साउल है, उसका एनकाउंटर इतना बड़ा है कि खुदा ने उसके नाम को बदला है अगले कुछ चैप्टर्स के बाद। ये एनकाउंटर इतना पावरफुल है क्योंकि यीशु मसीह यहां पर उसे कह रहा है कि तू मुझे सताता है। ऐसा उसने क्या कर दिया है कि वो यीशु को सता रहा है। लिखा है that he was breathing threat and murder against the people who were believing upon Jesus. He was breathing threat. वो जोश, वो वलवला जो कुछ अरसे के बाद, जो कुछ वक्फे के बाद, जो इस एनकाउंटर के बाद यीशु की बादशाही के लिए इस्तेमाल होगा, यहां पर इन लोगों के लिए थ्रेट बन चुका है। Which tells me that even you and I can have passion for the Lord, and it can be a threat for the people I am surrounded with. It can be a threat because I can be a servant of God and I can use you to make me famous. I can use you to fulfill my intentions. I believe that this message is not just for this church, but I believe this message is for the nation of United States of America. God Almighty is entrusted to give His people His fresh encounters. And no wonder that why in the Middle East and in the third world countries, people are seeing Jesus Christ in visions and dreams. And Jesus Christ is revealing His face all over the globe in that side of the world. And here we are in America. And it takes boldness and it takes guts to stand upon the pulpit and tell the people of God, let's get back to our knees. People of God, let's surrender our life. People of God, आइए हम अपनी जिंदगियों को खाकसार कर कर खुदावंत को कहते हैं कि आए खुदा मुझे तेरा दीदार चाहिए, क्योंकि मैं बदली हुई जिंदगी के साथ तेरी खिदमत करना चाहता हूं। मैं खादिम होकर ये बात कर सकता हूं कि जब तक मेरा दीदार इस यस्सु से ना होता, मैं खादिम होके यस्सु की ही भेड़ों को इस्तेमाल करता रहता ताकि मैं अपने मंसूबों को पूरा कर लूं। अपनी जिंदगी खुदावंत को देने के बाद और खिदमत के आने के बाद, अजीजों, कई बार मेरा दीदार इस यस्सु से हुआ है। God wanted to change my direction. God wanted to change where I was going. And this is a place where when you and when God meets, He tells you who you are. लिखा है कि जैसे ही उस पर रोशनी पड़ी है वो गिर गया, और फिर लिखा है कि वो कहने लगा, Who are you, Lord? This tells me that he began to see who God is and who He is. तो कौन है? तू कैसे नहीं जानता इस यीशु को? Apostle Paul have a great qualification to know the Old Testament. पास साहब तोरा जानता था, वो सारी नबूवतें जानता था, और वो जानता था कि यीशु मसीह नासरी जो मुर्दों से जी उठा है, ये बिलीवर्स क्या कर रहे हैं। वो फिलोसोफर था, वो स्कॉलर था, और वो बड़े अच्छे से तोरा को जानता था, और उसने फिलिपियों के खत में अपनी क्वालिफिकेशन सारी गिनवाई हैं। और यहां पर इस यीशु को कहता है
Who are you? Encounter with God gives us the revelation. वो मुकाशवा जब आप पर जलवागर होता है, यीशु की पहचान का मुकाशवा अजीजों, और जब जिंदगी बदलती है तो वो बदली हुई जिंदगी आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करने लग जाती है। वो बदली हुई जिंदगी जब बोलती है मुंह से खुदा का कलाम तो दिलों में जाकर लगता है। वो बदली हुई जिंदगी जब कहती है यीशु तो आसमान के दरीचे खुल जाते हैं। One encounter with God changes everything. और जब यीशु ने कहा I am Jesus, why do you persecute me? And it is hard for you to kick against the goads. Jesus Christ gave him as an introduction by sharing his name, but after that you see that how he humbled himself. क्योंकि लिखा है कि वो कहने लगा, what do you want me to do? After the encounter, the sign takes place where you and I become so humble. After a genuine encounter with the Holy Spirit, after the genuine encounter with your Savior and my Savior, after the genuine encounter with Jesus Christ, the Son of the living God, this sign will surely take place in our life, that we will come to a point and say, okay Lord, what you want me to do? और खुदावंद ने उसे यू टर्न का कहा है। आपकी जिंदगी में अगर ये एनकाउंटर नहीं हुआ है तो मेरी दुआ है आज हो। अगर आपकी जिंदगी में आप रोड ऑफ डमास्कस से नहीं गुजरे हैं तो मेरी दुआ है कि आप इस जुर्रत में आ जाएं कि आप कहें मैं चलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इस यीशु मसीह को रूबरू देखें, एनकाउंटर सिंपली मीन्स कमिंग फेस टू फेस। एनकाउंटर सिंपली मीन्स कमिंग टू अ पॉइंट वेयर यू एंड आई आर वन टू वन। दोबारा कहता हूं मैं, आप बहुत सारे मूवी स्टार्स को देखते हैं जब आप अपने टीवी चैनल को ओपन करते होंगे। मैं एथलीट्स को देखता हूं क्योंकि मैं स्पोर्ट्स चैनल देखता हूं। मैं सिंगर्स को देखता हूं, और वो लोग जो सामने परफॉर्म कर रहे हैं आप उनको नाम से जानते हैं पर उनकी जात से वाकिफ नहीं। आपने उनके चेहरे को देखा पर आप उनकी नेचर को नहीं पहचानते। इसी तरह अजीजों, ये पौलुस रसूल अपने बाप दादा के खुदा को जानता है पर कभी मिला नहीं है। इसी तरह अजीजों, मैं जो शहर कराची में पैदा हुआ और चर्च भी गया और हर संडे इस यीशु मसीह नासरी का पैगाम भी सुना, कभी इससे मिला ही नहीं। पर जिस दिन मुलाकात हुई उस दिन जिंदगी बदली, और जिस दिन मुलाकात हुई उस नई जिंदगी का मतलब पता चला। जिसे बाइबल मुकद्दस कहती है कि मैं आया हूं और मैं जिंदगी देने आया हूं। जो मुझ पर ईमान रखेगा वो मर भी जाए तो मरेगा नहीं। ये वो जिंदगी है जो ना खत्म होने वाली है। ये वो जिंदगी है जो मसीह यीशु हर एक एक फर्द बशर को देना चाहता है। ये वो जिंदगी है जो वो मुफ्त देता है, और ये वो जिंदगी है जो आप और मैं अपनी क्वालिफिकेशन से कतई नहीं हासिल कर सकते। हमेशा की जिंदगी। और यूहन्ना की अंजील उसके 17वें बाब में मसीह यीशु ने कहा कि और हमेशा की जिंदगी ये है कि हम खुदाए बरहक जो सच्चा बाप है उसको जाने और उसके बेटे यीशु को जाने। तो आप और मैं सेमिनरी जा सकते हैं। मैं जा सकता हूं सेमिनरी, और मैं स्टडी कर आ सकता हूं, और मैं अपने नाम के साथ सर्टिफिकेट लगाऊंगा। पर अगर ये जिंदगी नहीं बदली जो मुफ्त मिल रही है, मैं कैसे मुनाद बन सकता हूं इस जिंदगी का? ये सेमिनरी नहीं सिखा सकती मुझे, ये सेमिनरी नहीं सिखा सकती आपको, ये सेमिनरी किसी को नहीं सिखा सकती। मसीह यीशु यहां पर पौलुस रसूल को इस्तेमाल करने को है, और ये डेमोन्स्ट्रेशन मिनिस्ट्री की जब होगी तो पूरी दुनिया बदलेगी। आज आप और मैं जब इन खतों को पढ़ते हैं जो पौलुस रसूल ने लिखे हैं, उसमें वो गहरे राज और भेद जो उसने मसीह यीशु के बारे में पहचाने हैं वो किसी और ने नहीं पहचाने। उसकी भूख और प्यास को देखें। वो कहता है फिलिपियों में, जो मैंने पा लिया वो इतना काफी नहीं है कि मैं दौड़ा चला जाता हूं कि मैं और पा लूं।
अगर आज आपकी और मेरी जिंदगी भी इस तरह की भूखी प्यासी हो जाए तो फिर हम अपने एनकाउंटर से दूर नहीं है। मैं समझता हूं मसीह यीशु सिर्फ एक बार एनकाउंटर नहीं देता, वो बार बार देता है। मैं ये समझता हूं कि वो बार बार एनकाउंटर्स देता है, और वो इसलिए देता है कि ताकि जब हमारी जिंदगी बदले और हम उस गवाहियों से जब दूसरों को बताएं तो हम सब इस हमेशा की जिंदगी के बरकत के वारिस बने। That's the ultimate purpose of Jesus Christ to come on the face of this earth. And an encounter with God. I know for my life, मैं अपनी जिंदगी के लिए जानता हूं अजीजों कि जब मेरी मुलाकात इस यीशु मसीह से हुई और जब इस कलाम को मैंने खोलना शुरू किया, यीशु से मिलने के बाद everything made sense. Now this book is not just a book of history for me. Now this book is not just a book of concepts or doctrines for me. ये सिर्फ डू और डोंट्स की अब बुक नहीं रही मेरे लिए, बल्कि अब मुझे लगता है कि ये खुदा का लव लेटर है जो उसने यीशु मसीह के वसीले से, रूल कुदुस के वसीले से लिखा और उसके शागिर्दों के वसीले से हम तक पहुंचा दिया है। मुझे हर हवाले में यीशु दिख रहा है, मुझे हर चैप्टर में यीशु दिख रहा है, मुझे हर कहानी में यीशु दिख रहा है, और मुझे हर एक एक बात यीशु के करीब लेकर जा रही है। और जब मैं इस कलाम मुकद्दस को पढ़ता हूं तो मेरा दिल चाहता है कि मैं जब अपने घर से बाहर जाऊं तो मुझे कोई मिले, मैं उसके से यीशु की बात कर लूं। मैं गैस स्टेशन पर खड़ा हूं और मैं गैस पंप कर रहा हूं, कोई मिल जाए जिससे मैं यीशु की बात कर लूं। जब इस कलाम की भूख और प्यास हो जाए तो कैसे हम अपने दीदार से दूर हैं, कैसे हम अपने खुदा को रूबरू मिलने से दूर हैं अजीजों। We all have challenges in our life, and specifically coming to America, and I understand that our community faces challenges, but I believe people of God, जिस दिन दीदार हमारा हमारे यीशु से हो जाएगा वो चैलेंजेस छोटे लगेंगे। और जब मुझे मसीह यीशु के साथ इस तरह का दीदार हुआ, मुझे कभी कभी लगता था मैं किसी हीलिंग क्रूसेड में आया हूं। मैं हाथ जोड़कर और घुटनों पर दुआएं कर रहा हूं और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं किसी के लिए कुछ भी मांगूंगा वो पूरा हो जाएगा। That is all because the Lord himself was so real to me. Why the encounter is important? Because that's the point. यीशु मसीह अपना मुकाशवा और अपनी पहचान आपके लिए इतनी रियल बना देगा कि आपको अपनी खुद ही उस टाइम फेक लगेगी। जिस तरह यसाया नबी कहने लगा, आई एम अ मैन ऑफ अनक्लीन लिप्स। जिस तरह पतरस के साथ जब मौजा हुआ तो उसने कहा कि मैं तो गुनहगार इंसान हूं, तो अजीम है। In an encounter we see that how broken, how weak and how limited we are, and it is such a privilege that God Almighty chooses us. It is such an amazing thought that even when Jesus Christ was on the cross, he was thinking about us. उसने आपको और मुझे खून से खरीदा है, और वो खून अजीजों बहुत कीमती है। तो वो क्यों गुरेज करेगा अपना चेहरा आपको दिखाने से? वो क्यों गुरेज करेगा अपने आप को आप पर जाहिर करने से? मुझे ऐसे लगता है कि जब जब वो अपने आप को हमसे छुपाता है, बिकॉज वी आर फुल ऑफ आवरसेल्व्स, जब आप और मैं अपनी खुदी में होते हैं, मुझे लगता है कि खुदा को नहीं पसंद है कि खुदा अपना आप हम पर जाहिर करे। बट द मोमेंट वी कम टू अ पॉइंट where we become humble, lowly and surrendered before him, that's the point where he chooses to reveal himself. मेरी दिल से दुआ है कि यीशु मसीह इस साल एंड होने से पहले हम सबको अपने दीदार से नवाजे। मेरी दुआ है कि हमारी यूथ इस दीदार को हासिल करे, और जिस तरह कन्वर्जन सॉल की पॉल से हुई, हम अपनी यूथ की कन्वर्जन को अपनी आंखों से देखें। और मैं ये समझता हूं कि ना सिर्फ हमारी यूथ, बल्कि जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे बड़े हैं, वो भी इस दीदार को हासिल करें। क्या ही खूबसूरत बात होगी कि जब आप सोकर उठें और आपके बच्चे आपको बताएं कि हमने रात को मसीह यीशु को ख्वाब में देखा है और मसीह यीशु बहुत जल्द आने वाला है। मम्मा, मैंने देखा है कि यीशु मसीह तो मुर्दों से जी उठा है।
I know for myself that Jesus became so real for me at point कि मुझे ऐसे लगता था कि मैं उसके हर एक एक जख्म को महसूस कर सकता हूँ. मैं जब सोचता था कि उसके हाथ में कील गए हैं, मैं महसूस कर पा रहा हूँ उस दर्द को, और मुझे नहीं समझ आती कि रुल कुदुस ये कैसे कर सकता है. मैं जब सोचता था कि उसके सर पर कांटों का ताज है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ हर एक एक उस थॉर्न को जो उसे चुभ रहा होगा. रुल कुदुस कादिर है कि आपके लिए और मेरे लिए यीशु को इतना रियल बना दे कि जब जब आप चलेंगे वो आपके साथ चलेगा और आप महसूस कर पाएंगे. जब आप सो रहे होंगे, बाइबल मुकद्दस ऐसे ही कहती है, इन यू आई लिव मूव एंड हैव माई बीइंग. जब आप सो रहे हैं आप महसूस कर पा रहे हैं कि खुदावंद आपके साथ है. जब आप उठे हैं आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपकी जो गॉड कॉन्शियस है वो इतनी अब रिवाइव हो चुकी है कि आपको पता है कि यीशु मसीह इस रूम में है. और मैं महसूस कर पाता था कि यीशु मसीह ने सलीब मेरे लिए उठाई है. मैं महसूस कर पा रहा हूं कि किस तरह उसके पैरों में कील ठोके गए हैं. और मैं महसूस कर पा रहा था कि जब यीशु मसीह को कोड़े मारे गए होंगे और उसके बदन से जब गोश्त निकलता होगा, हाउ इट मस्ट हैव फेल्ट. दैट कॉज्ड मी टू चेंज माई लाइफ. दैट कॉज्ड मी टू टेल गॉड, इवन दो इट्स हार्ड, आई वुड लाइक टू गिव यू माई यूथ. That caused me to bring me to this point that I told God, it's worth to live my life for you. इस पहचान के मुकाशवे ने मेरी वो जिंदगी बदली जो 4 साल की सेमिनरी भी नहीं कर सकी, और मैंने इतने पैसे ऐसे लगा दिए. यीशु मसीह हमें मुकाशवा देना चाहता है अपनी पहचान का. हालेलुया. कुछ लम्हों के लिए मैं आपको दावत दूंगा, आइए हम अपने कदमों पे खड़े होते हैं. मैं क्वायर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह हमारी रहनुमाई करें जबकि हम दुआ में जाएंगे, और बहन वंदना हमारी रहनुमाई करें आखिरी सॉन्ग में. आइए हम अपने आप को खाली करें. जिस तरह सॉल ने जब यीशु की आवाज़ को सुना है तो उसने सुनने के बाद कहा, व्हाट यू वांट मी टू डू. उसका सवाल जायज था कि मैं तुझे नहीं जानता, और मेरे साथ बिल्कुल ऐसे हुआ. मैंने अपनी जिंदगी में जब रट्टे मार लिए कि खुदा तू अल्फा ओमेगा है, तू इब्तदा और इंतहा है, तेरी मानित कोई नहीं है, तू रब्बुल फाज है, तो मुझे रुल कुदुस ने कहा कि तू नहीं जानता खुदा को. मैंने रुल कुदुस को कहा कि मैं कैसे नहीं तुझे जानता, मैं तो नजात याफ्ता हूं. और तब मुझे रुल कुदुस ने यह पहचान दी कि खुदा बाप के पास कोई नहीं आ सकता जब तक यीशु लेकर ना आए, और यीशु को कोई नहीं जान सकता जब तक रुल कुदुस उस पर यीशु को रिवील ही ना करे. मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, यीशु मसीह को आप और मैं नहीं जान सकते जब तक रुल कुदुस हम पर जाहिर ही ना करे. रुल कुदुस इतना केपेबल है कि आपके थॉट्स को कैप्चर कर सकता है, आपके दिलों के हर एक एक ख्वाहिशों को, आपके दिलों के इरादे और मंसूबों पर कब्जा कर सकता है. और रुल कुदुस चाहे तो यीशु मसीह को इतना रियल आपके लिए बना सकता है कि आपका हर मौजज़ा आपके लिए मुमकिन लगेगा, और आपकी हर परेशानी आपके यीशु के आगे छोटी लगेगी. आइए कुछ लम्हों के लिए अपनी जिंदगी को खाली करते हैं. अगले कुछ लम्हों के लिए अपने आप को फिरोतिन कर देते हैं. अगले कुछ लम्हों के लिए कह देते हैं, ऐ खुदा हम तेरे हैं. To Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. मिलकर कहेंगे, all to Jesus
One voice. I surrender all. I surrender पूरे दिल से उसे कहें. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender In the moment of silence, कुछ लम्हों के लिए आप अपने होंठों को खोलें और गुफ्तगू करें. गुफ्तगू both sides से होती है. अपने मसीह यीशु से गुफ्तगू करें. कहें that how much he means to you. Tell him that how much you love him. Tell him that how much important he is in your life. Tell him that how much you appreciate his goodness and his mercy in your life. Tell him that how much thankful you are for his cross. यीशु हम तेरे लहू के लिए शुक्रगुजार हैं. हम तेरी सलीब के लिए शुक्रगुजार हैं. हम रुल कुदुस के लिए शुक्रगुजार हैं. हम तेरी मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हैं. हम तेरे खुले हुए आसमान के लिए शुक्रगुजार हैं. हम तेरे छाए हुए अबर के लिए शुक्रगुजार हैं. हम शुक्र करते हैं तेरी हुजूरी के लिए और हम शुक्र करते हैं कि तू यहाँ मौजूद है. हालेलुया, हालेलुया. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, wholly Thine. May Thy Holy Spirit fill me. May I know Thy power divine. यहाँ पर एक भाई है. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Thank you, Jesus. There is a brother here, and the Lord is saying to you, मैं तुझे निकालता हूँ. I don't know what this means, पर खुदा आपको कह रहा है मैं तुझे निकालता हूँ. I don't know, it's a darkness, it is a valley of death, I don't know what, but there is a brother here, and the Lord is saying मैं तुझे निकालता हूँ. Call upon my name, and you will see my hand manifest over your life. मैं तुझे निकालता हूँ क्योंकि मैंने तुझे अलहदा किया है और तू मेरे नाम से बुलाया जाता है. और खुदावंद खुदा तुझसे कहता है मर्दे खुदा तू घबरा मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ. And this is a prophetic move. I will request Pastor Khurram to please come in front because I would like to pray for him with the people of God. कांग्रीगेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने राइट हैंड को बढ़ाएं और हम सब मिलकर बरकत देंगे हमारे पासबान को, हमारे पास्टर को, वो खादिम जो उसने हमारे लिए मखसूस किया है, वो खादिम जो रातों को जागकर हमारे लिए दुआ करता है, वो खादिम जो हमारे खानदान के लिए पैशन रखता है. हालेलुया. खुदावंद जैसा तूने कहा अब मैं वैसा करने को हूं और मैं तेरा शुक्र करता हूं क्योंकि पास्टर खुरम खुदावंद आपसे कहता है
कि मैंने तुझे डैमेस्कस एनकाउंटर दिया है. And when you will pray over my people, they will receive the encounter of God. When you will lay hands upon them, they will receive fresh encounter with God. और खुदावंद खुदा, मैं शुक्र करता हूँ क्योंकि तूने अपने बंदा को हर दुख और हर मुसीबत से निकाला है. और खुदावंद मैं शुक्र करता हूँ उस दलेरी के लिए जो तेरे बंदा के पास है. Nothing shall be able to stop him. और खुदावंद मैं इनके लिए सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ देता हूँ इन्हें. और मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि तू अपने आसमान को हमेशा इन पर खुले रखना. और खुदावंद मेरा ईमान है कि इनकी कलीसिया से ये एनकाउंटर्स बर्थ लेंगे. और खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि ना सिर्फ नौजवान बल्कि तू उधेड़ उम्र के लोगों में भी ये काम करेगा. और खुदावंद मेरी मिन्नत है, रुल कुदुस का दरिया बहता रहे, रुल कुदुस का दरिया बहता रहे. तो अपने खादिम के ऊपर अपने हाथ को अब बढ़ा. और मैं दुआ करता हूँ तेरी कसरत का मसा अब इन पर फ्लो हो, जलाल से भर आए खुदा. और मेरी मिन्नत है जब इनके मुंह से कलाम निकले तो मौजे होना शुरू हो जाए. मैं दुआ करता हूँ खुदावंद जब ये कह ही दें तो उसी वक्त हो जाए. मैं दुआ करता हूँ तेरा इख्तियार और तेरा मसा इनकी ज़िंदगी से डेमोन्स्ट्रेट हो. और खुदावंद इब्लीस की कोई चाल इनके खिलाफ छूने ना पाए. मैं मिन्नत करता हूँ तेरे साए में ये महफूज रहें और तेरा दाहिना हाथ हमेशा इन पर जोरावर रहे. इनके आने और इनके जाने में तू बरकत देना. इन्हें अपनी आँख की पुतली की तरह तू महफूज रखना. और मैं मिन्नत करता हूँ खुदावंद इब्लीस इनकी हेल्थ को कभी छूने ना पाए. मैं मिनिस्ट्री के लिए ग्रेटर डायमेंशंस मांगता हूँ. मैं स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स के लिए ग्रेटर डायमेंशंस मांगता हूँ. मैं दुआ करता हूँ खुदावंद ये तेरी शीर आवाज़ को सुने आए खुदा. और मेरी मिन्नत है खुदावंद इस कलीसिया में जलाली काम हो. मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद अब से जो तू करने को है, अब से जो तू करने को है. और ये खुदावंद का फरमान है. It shall be done according to our faith. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.